हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र और आज हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो सबसे पहली हमने लाइन लिखा है कि वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी क्यों है। तो ये बात बहुत ज़्यादा बताने वाली तो नहीं है, जैसा कि आप मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, आप पूरे सिनेरियो को ध्यान से देख रहे हैं कि आजकल इंग्लिश का महत्व क्या है, वाई इज़ इट नेसेसरी, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो फिर भी हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर आपके सामने कुछ उदाहरण रखेंगे जिससे कि आपको इसके महत्व का पता चले। सबसे पहली बात ये कि आपके किंडरगार्टन यानी कि केजी से लगाए और पीएचडी तक यदि आप स्टडी करना के दौर में हैं या स्टडी कर चुके हैं या फिर स्टडी करना चाहते हैं, जो भी हो, आपको मूलभूत सब्जेक्ट एक भाषा के रूप में जो भाषा उभर रही है वो है अंग्रेजी लैंग्वेज। आज हर बच्चा या हर पेरेंट्स आज चाहता है कि उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें और उनको इंग्लिश भाषा का ठीक ठाक ज्ञान हो। जानते हैं क्यों? ताकि वो ग्लोबल लेवल पे अपने आप को संभाल सकें, लोगों से के साथ compete कर सकें। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज when you go out of the nation, when you go out of the country, and not out of the country, even within the country, if you are living and doing the job, so you have to face the problem of English language when you go for the interview. The interview mostly talk in English language, and if you are not competent about it, if you are not well spoken about the English language, you have to lose your job or you have to get rejected from the job. Mostly those candidates are selected who have very fluent skill of English language. Why? Because they have to talk to all kind of people from different region, from different kind of country, and this is the only mono language or single language by which you can address to everybody. That is why this language is very important. I want to explain some of the words also. For example, if you purchase any kind of product from any shop, you will see whole description on the packet is written in English language. If you are going to somewhere by train, by plane, or by somewhere, the announcement is being done in the English along with the Hindi or any local language. As well as if you are having a mobile, most of the settings, if you are not changing into your mother tongue, most of the settings are in the English language. It means you are flooded with the English language, you are surrounded by the English language, and if you are deprived of this language, you will feel a bit loss. You will feel yourself very inferior compared to other one who knows it well. So there are some problems as a beginner when you start English language learning. There are some problem which comes in the way, and sometimes it discourages you to learn this English language. So first of all, we have to point by point understand what are the problems, and after that we will understand that what are the solution also, because every problem has solution, guys. So your thought track and English language track, let's understand it. Your thought track यानी कि थोड़ा सा हम हिंदी में बात करेंगे। योर थॉट ट्रैक का मतलब ये सामान्य सा ये है कि आप जो सोचते हैं और इंग्लिश भाषा में जो बोला जाना चाहिए, इसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हतोत्साहित करता है, सही से आप बोल नहीं पाते हैं। जैसे कुछ शब्द मैं जोड़ रहा हूँ और इसको सुनिए। जैसे कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो ये तो खैर बहुत कॉमन है। जैसे कि लोग कहते हैं माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन लेकिन बाग बाग का यहाँ एक सामान्य सा अर्थ है, ये शाब्दिक अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ अर्थ का अर्थ है, यानी कि ये आपके सेंस का अर्थ है। वहाँ पे आपको माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन नहीं हो सकता है। देयर आर मेनी अदर वर्ड्स, जैसे कि वह मुझे चाहता है या मैं उसे चाहता हूँ। तो चाहना का मतलब आई वॉन्ट हिम या आई वॉन्ट हर या सी वॉन्ट मी। साधारण अगर शब्द का मतलब निकालें तो यही होगा, बट यू नो दैट आई लाइक हिम, आई लाइक हर या सी लाइक्स मी, दीज आर द वर्ड फॉर द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड। यानी कि हमारे जो सोच की जो भाषा है और इंग्लिश लैंग्वेज की जो एक्चुअल भाषा है उसमें थोड़ी सी गैप आ जाती है, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब हम बोलने जाते हैं तो क्योंकि हम अपने भाषा में कन्वर्ट करके अंग्रेजी को बोलते हैं,
तो दिक्कत ये आती है कि हमारी भाषा की जो लाइनें होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं और अंग्रेजी में जो उसको सुलह किया जाना चाहिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यही थोड़ा सा अंतर आता है, तो इसको हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो है नो एम्बियंस अराउंड यू, यानी कि एनवायरनमेंट, यानी आपके पास ऐसा कोई माहौल नहीं है या परिवार में कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है या आपके मित्र मंडली में या फ्रेंड सर्किल में ऐसा कोई नहीं है जो आपसे बात करता हो इंग्लिश में। तो ये भी एक समस्या होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आई विल स्पीक व्हेन आई वुड बी एक्सपर्ट ऑफ इट। हम सीखते तो रहते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम लेक्चर्स देखते हैं, हम जो पिछले जिस क्लास से हम अब तक आए हैं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उस क्लास तक हमें कम से कम नहीं कुछ सीबीएसई में तो कम से कम एक सब्जेक्ट के रूप में तो पढ़ते आए ही हैं। कुछ शब्दों का ज्ञान होगा, कुछ ग्रामेटिकल नियमों का हमें ज़रूर ज्ञान होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम तभी बोलेंगे जब हमको ये भाषा पूर्ण रूप से आ जाएगी तब। तो ये एक बड़ी गलती है। जो सबसे लास्ट वाली चीज़ मैं इंगित करना चाहूँगा वो है गेटिंग स्केयर्ड ऑफ सेंटेंस एरर। कभी कभी हम हिम्मत जुटा भी लेते हैं बोलने की, चलिए हम बोलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि यदि मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे। वाई? बिकॉज आई विल कमिट सम मिस्टेक वाइल स्पीकिंग एंड पीपल व्हेन दे विल नोटिस दे विल लाफ एट मी। तो आप वहीं से मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जो थोड़े बोलता है या हिंग्लिश जिसको कह सकते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, कुछ लोग लाइनें अभी मैं ही इसमें उपयोग किया हूँ, कभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, कभी हिंदी बोल रहा हूँ, यानी कि आप भी नहीं अगर हो पाता है आप कि आप एकदम शुरू से लगाए अंत तक केवल इंग्लिश ही बोलें, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट इट विद इंग्लिश लैंग्वेज। समटाइम्स इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट, यू कैन स्टार्ट हिंदी, when you come to the track you can start English. So in this way you will get improvement, lot of improvement. Just think of it. So these are some of the points that comes into the way of as a problem in English language learning, and after this we will think about the solution. What are the solution? Okay, let's see it. तो दोस्तों अब तक हम बात ये कर रहे थे कि इसमें समस्याएं आती क्या क्या हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके समाधान क्या हैं। व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट दे हैव अराइज्ड। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट लर्न अ पर्टिकुलर सेंटेंस एंड प्रैक्टिस इट। दिन भर में जो भी आप पढ़ते हैं कोई एक सेंटेंस या पढ़िए और उसका यूज पढ़ रहे हैं, जैसे शुड का पढ़ रहे हैं, कुड का पढ़ रहे हैं, मे का, माइट का, कैन का, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, जो भी आप पढ़ रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़िए और छोटा छोटा उसको बनाइए, छोटे से छोटा, उसमें थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाइए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उसको थोड़ा सा सिचुएशनल बनाइए कि किस सिचुएशन में इसको बोला जाता है। तो इससे धीरे धीरे वो आपके जहन में बैठती चली जाएगी, वो आपके मनोमस्तिष्क में धीरे धीरे गहरे बैठ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि कीप ऑन ट्रांसलेटिंग योर थॉट्स अगेन एंड अगेन। हालांकि हमारा मनुष्य का दिमाग है, कुछ ना कुछ हमेशा सोचता ही रहता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आप भी उस सोच को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे मन में सोचा है कि मैं आज रुद्रपुर जाऊंगा, तो आप सोचिए कि आई विल गो टू रुद्रपुर। मुझे पैसे कमाना है, तो कमाना है ना है शब्द आ रहा है तो हैज़ टू, हैव टू से होगा, तो आई हैव टू अर्न मनी। मुझे एक मोबाइल खरीदना है तो आई हैव टू परचेज अ मोबाइल। सो दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर कीप कमिंग इनटू द माइंड, सो ट्राई टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। दे विल हेल्प यू आउट a lot of help. They will help you out to speak in English very well. The next one is watch TV and movies and notice the English lines that they speak in a given situation. जब भी हम सीरियल, टीवी या फिर अपने मोबाइल में भी कुछ देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स उसमें प्ले किए जाते हैं, जो पात्र होते हैं, उसमें कोई ना कोई सेंटेंस वो बोलते ही रहते हैं, छोटे छोटे इंग्लिश के शब्द बोलते हैं। उसको नोटिस कीजिए, बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि हम जितना पढ़ के नहीं सीखते हैं, सुन के ज़्यादा सीखते हैं। तो उनको नोटिस कीजिए, साथ ही साथ ये नोटिस कीजिए कि वो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस सेंटेंस को उसने बोला है।
जब आप सिचुएशन को समझने लगेंगे, उसके बाद शब्दावली को पकड़ने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो वोकैब्स है वो बढ़ती चली जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी धीरे धीरे हाई होती चली जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, रीड सीबीएसई और आईसीएसई सेकेंड और थर्ड क्लास बुक बहुत ज़रूरी होता है। आपको कई इंग्लिश एजुकेटर ये बताते हैं कि न्यूज़ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। दरअसल दोस्तों रियलिटी ये है कि जब आपको इंग्लिश सीख ही रहे हैं और आपको बेसिक नहीं आ रहा है, तो क्या आपको ये पता है कि आपको हिंदू पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी आनी ही चाहिए, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। जब आपको खुद की इंग्लिश की इतनी कमज़ोर है, तो क्या आप हिंदू पढ़ के अपनी इंग्लिश सुधार लेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिक सीख रहे हैं तो हमको बेसिक चीज़ों से ही शुरुआत करनी है। यानी कि हमको अगर सीढ़ी पे ऊंचाई पे चढ़ना है और हम नीचे हैं, तो हमको नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप सीबीएसई बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी की या आईसीएसई के सेकेंड क्लास की या थर्ड क्लास की बुक्स की कहानियाँ पढ़िए। साइंस वगैरह की जो उसमें बुक्स आती हैं उसको पढ़िए। बड़ी छोटी छोटी लाइनों में प्यारे प्यारे जो है कि लाइन्स लिखे रहते हैं, बड़ी चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको पढ़ें, उसको समझें। अगर चीज़ें समझ आती हैं तो कंटिन्यू रखें, नहीं तो वरना आपका अपना चॉइस है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। जब मैं इंग्लिश सीखना शुरुआत किया दोस्तों, तो हमारे पास भी कोई माहौल नहीं था, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं यही मेरे काम आई और आज मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ। आज मैं 5-6 साल से इस फील्ड में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, हज़ारों लड़कों को पढ़ाया हूँ। तजुर्बा है, यही चीज़ें अप्लाई करके उनको दे रहा हूँ, क्योंकि कॉमन समस्याएं लगभग मिलती जुलती, सबकी समस्याएं एक ही जैसी होती हैं। तो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपनाइए। अगर फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके चैनल पे आती रहे और आपको हमारा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।